King Bruce and the Spider. There once was a brave king ruling Scotland named Robert Bruce. One day, the King of England decided to take over Scotland and march there with a huge army. The Scottish king's army, however, was very small. The armies fought bravely 6 times, but each time Scotland lost the war. Feeling defeated and weak, King Bruce found a cave and hid inside. He considered giving up on the war as his body had no more energy left. One day, while inside the cave, he spotted a spider spinning her web again and again, trying to reach the other end. The web broke nearly 6 times because it was too thin. She kept working hard with great care. The king asked her to give up feeling sad for her. However, the spider did not give up, and on her 7th try, she managed to reach the other end of the cave, weaving a beautiful web. The king was amazed and encouraged. He felt maybe he too could fight and win his own battle like the spider had done. He took his army out for the 7th time, and this time won against the King of England. King Bruce had learnt a lesson from the spider, to try and try again till you win. Good morning everyone. Unit number 3 King Bruce and the Spider की एक्सरसाइज में आगे देखेंगे. Pronunciation. Repeat the given words. These words rhyme with king. Bring, sing, ring, thing. You have to repeat this word after me. Bring, sing, ring, thing. To repeat the given words, this word rhyme with thin. Okay, thin के rhyming words है ये. Bean, skin, pin, tin. Okay, again repeat after me. Bean, skin, pin, tin. Okay, listening skill. Say aloud the word spider. Spider. As you say it, clap your hands. Spy. Clap once. Dare. Clap again. Okay, spy. जब भी आप spy बोलो तब एक बार clap करना है और डर बोलो तब भी again clap करना है. Okay, spy, clap. Dare, clap again. Again, spy, clap. Dare, clap again. Okay. Listening skills. Listen to the words called out by your teacher and repeat after her. As you repeat, clap. 1. Window. 2. Bucket. 3. Sofa. 4. Breakfast. 5. Mirror. 6. Carpet. 7. Pillow. 8. Cooker. 9. Grinder. 10. Blanket. ओके, नेक्स्ट है स्पीकिंग स्किल्स. प्रैक्टिस आस्किंग एंड आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली विथ योर फ्रेंड. ओके, तो ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है. लाइक व्हाट इज़ योर नेम, आपको पूछना है कि व्हाट इज़ योर नेम, फिर वो बोलेगा कि माय नेम इज़, जो भी उसका नाम है वो. फिर उसे कहना है कि तुम मुझे पूछो कि व्हाट इज़ योर नेम, फिर आपको आंसर देना है कि माय नेम इज़ दिस. तो आपको ये यहाँ पे लिखना भी है. ओके, यहाँ पे ये ब्लैंक्स जो दी है यहाँ पे आपको लिखना है. ठीक है, और आपको ओरली भी इसकी प्रैक्टिस करनी है. देन सेकंड है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. फिर आपको बोलना है कि माय बेस्ट फ्रेंड इज़ दिस और दैट, जो भी नेम हो वो. नेक्स्ट, व्हाट डज़ योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं. तो माय फादर इज़ अ टीचर, या फिर माय फादर इज़ एन इंजीनियर, माय फादर इज़ अ डॉक्टर, जो भी आपके पापा काम करते हो. माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन. ओके, माय फादर इज़ डूइंग अ जॉब. तो जो भी आपके पापा काम करते हो वो आपको लिखना है. नेक्स्ट, वेयर इज़ योर हाउस, माय हाउस इज़ इन
आपका घर कहाँ पे है, तो माई हाउस इज़ इन आनंद या माई हाउस इज़ इन करमसद, माई हाउस इज़ इन मोगरी। ओके, जिसका भी घर जहाँ हो वो आपको लिखना है। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपकी बर्थडे कब है, तो आपकी बर्थडे जो भी है वो लिखना है। माई बर्थडे इज़ ऑन ब्लैंक। ओके, जब भी आपकी बर्थडे हो वो लिखना है, डेट के साथ यहाँ पे लिखना है। और ये आपको ओरली भी अपने फ्रेंड के साथ या फिर आपके भाई बहन के साथ आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अभी ये पढ़ते हैं रीडिंग फॉर फन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड। ओके, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। मैं रीड करती हूँ, आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। दीज आर स्पाइडर्स। ओके, ये स्पाइडर्स है। दोज आर कॉबवेब्स। ओके, तो ये कॉबवेब्स है। ओके, आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। नेक्स्ट, दीज आर शेल्स, दोज आर बोट्स। ओके, दीज आर शेल्स, दोज आर बोट्स। नेक्स्ट, दीज आर काउस, दोज आर ट्रीज। नेक्स्ट, these are flowers, those are ducks. Next, these are kittens, those are birds. Next, these are women, those are shops. ओके, तो ये है जो हमने प्लूरल सीखा ना, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो these and these है वो THIS, these है वो सिंगुलर के लिए यूज़ करता है। लाइक दिस इज़ अ टेबल। ओके, और एक से ज़्यादा टेबल होंगे, 2 या 3, तो हम यूज़ करेंगे THESE, दिस आर टेबल। और ये दोनों दिस नियर की चीज़ को मेंशन करते हैं कि जो चीज़ आपसे नियर हो, राइट। अभी ये दोज है तो वो मैं आपको समझा देती हूँ कि दोज कब यूज़ करते हैं, राइट। तो जब दूर की चीज़, फार चीज़ हमें दर्शानी हो तो दैट है वो सिंगुलर है एंड दोज वो उसका प्लूरल है। और जो दूर है, फार चीज़ है, फार अवे थिंग्स हमें दर्शानी है, देन वी यूज़ दैट एंड दोज। दैट है वो हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और दोज है वो प्लूरल के लिए। यहाँ पे सभी प्लूरल वर्ड्स है, लाइक स्पाइडर, कॉबवेब्स, ओके, शेल्स, बोट्स। ओके, ये सब प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे दोज यूज़ किया है फार अवे चीज़ को दर्शाने के लिए। और जो नज़दीक चीज़ है उसे दर्शाने के लिए दिस वर्ड यूज़ किया है। ओके, एज यू कैन सी हियर। ओके, इसका डिटेल वीडियो जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स। नेम द इंसेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू गिवन। ओके, तो यहाँ पे क्लू दिया जाएगा और उससे आपको गेस करना है कि वो इंसेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है इट सक्स आर ब्लड्स। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे मॉस्किटो। तो मॉस्किटो का स्पेलिंग है MOSQUITO, मॉस्किटो। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, आपको लिखना है। ओके, MOSQUITO, मॉस्किटो। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है इट स्प्रेड्स डिसीज बाय सिटिंग ऑन फूड। ओके, फूड पे बैठ के वो डिसीज यानी कि रोग फैलाते हैं, तो वो है हाउस फ्लाई। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउस फ्लाई, HOUSEFLY, हाउस फ्लाई। आपको भी यहाँ पे जो बॉक्सेस मेंशन किए गए हैं उसमें लिखना है हाउस फ्लाई। ओके, नेक्स्ट है
इट मेक्स द गार्डन ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पे ये पिक्चर देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ओके, इट मेक्स द गार्डन वेरी ब्यूटीफुल, तो वो है बटरफ्लाई। ओके, ये पिक्चर देख के ही समझ में आ जाएगा। तो बटरफ्लाई का स्पेलिंग है BUTTERFLY, बटरफ्लाई। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है बटरफ्लाई। फिर नेक्स्ट है इट स्टिंग्स एंड मेक्स हनी। ओके, नेक्स्ट है इट स्टिंग्स एंड मेक्स हनी। तो ये आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। तो ये है हनी बी। ओके, HONEYBEE, हनी बी। ओके, तो ये आपको इस बॉक्स में यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है इट इज़ फाउंड इन ड्रेन्स एंड डार्क प्लेस। ओके, तो ये आपको देख के ही पता चल जाता है कि ये कौन सा है इंसेक्ट है। तो ये है कॉकरोच। ओके, तो COCKROACH, तो ये है कॉकरोच। तो आपको यहाँ पे लिखना है कॉकरोच। ठीक है। देन नेक्स्ट अ वैल्यू फॉर लाइफ। ओके, ये देखते हैं अभी। द स्पाइडर वर्क हार्ड टू स्पिन इट्स वेब, ऑल्दो it failed 6 times, it succeeded the 7th time. What will you do if you do not get good marks in an exam? Will you give up or will you try harder? ओके, आप क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे कि आप क्या करेंगे। ओके, अब आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो आप गिव अप कर देंगे, हार मान लेंगे, या फिर ज़्यादा मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाएंगे। ओके, सोच के रखना है। मैं लाइव क्लास में ये डिस्कस करूँगी। We usually dust the cobwebs that we find in our homes. Why do you think we do that? ओके, ये भी आपको रेडी करके रखना है। ओके, सोच के रखना है। ये दोनों क्वेश्चंस मैं लाइव क्लास में डिस्कस करूँगी। फाइन। देन लाइफ स्किल्स। इमेजिन यू हैव टू लिव इन अ केव फॉर अ वीक। आप इमेजिन करो कि आपको एक गुफा में एक वीक के लिए रहना है। लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द थिंग्स दैट यू विल नीड। ओके, इस पिक्चर को देखिए और सर्कल कीजिए कि आपको एक वीक के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो आपको ये खुद से करना है कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। सभी चीज़ को नहीं लेनी है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं उसे ही ले सकते हैं। तो आपको सर्कल करना है। लाइक इट इज़ इम्पोर्टेंट गैस, वाटर बॉटल। ओके, फिर ये बेडशीट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये फूड पैकेट है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आपको सर्कल करना है। आपको क्या लगता है वो आपको आपके माइंड से सोच के सर्कल करना है। डू यू थिंक किंग ब्रूस हैव वॉन द वॉर इफ हैड नॉट सीन द स्पाइडर स्पिन द वेब? वाई डू यू थिंक सो? ओके, ये भी हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की एक्सरसाइज फिनिश होती है। जो लाइव क्लास में 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, ओके, वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज सब फिनिश हो गई हमारी ये एक्सरसाइज। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4 एट द जू। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।